इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and everyone who has joined us today for this Business Opportunity Over Chai webinar series. This is a digital representation where the aim of the Franchise India team is to provide you and represent the brand of the day. Franchise India is the brand which is helping all international and national clients brands to expand their business with our pan India offices. And we truly claim that no one sells more business than us because we have helped thousands of investors in getting the business solutions as well as franchise options from us. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am, and both are hosting this particular webinar. This is a digital representation and we do not endorse any particular brand. The brand which we got for you today represents F&B Vertical. Tikka Junction from Delhi is the brand we are representing today. Tikka Junction has their penetration in with 12 stores in North India and they are known for their 240 plus delicious dishes which they are serving to each one of us. And it is our privilege to welcome and invite Mr. Pranav Puri as well as Mr. Chirag Kesar to talk about the brand. Thank you so much, sir, for joining us today. But before we start the formal presentation, Puri sir, जानना चाहेंगे इस पूरी जर्नी के बारे में चिराग सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई and after that we'll formally start the presentation. Over to you, sir. Right. We started in 2008. 2008 में हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी with a very small outlet, and we just had a passion about food. कि फूड की जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएं and being into this business. और हम actually the best part was कि we all are food lovers. Me, Chirag, and Nikhil, one of our other partner. We all are food lovers. So we used to travel a lot. और हम हर डिफरेंट जगह पे जाके डिफरेंट cuisine को ट्राई करते थे, सब कुछ करते थे. And then we planned of opening something, which is our hobby as well as our passion. And 2008 में हमने एक जर्नी स्टार्ट करी. Never thought of getting into what we have done right now. उस वक्त सिर्फ विजन ये थी that जो हमारा शौक है हम उसको अपने काम में लेके आए. And suddenly वो शौक काम में बली कन्वर्ट हुआ, काम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ. And by grace of God and by the love of people, we are now, I mean, I can proudly say कि अब हमें एक्चुअली दिल्ली के अंदर लोग जानते हैं as a brand
people know about Tikka Junction. And हमारा बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा जो खाना है, that is very comfortable food in sense of it is something what you get in restaurants, but it is very easy on your pocket and बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है. So it is also quick munch कि आप जल्दी से अगर आपको कोई चीज चाहिए तो स्टार्टर्स या स्नैक्स आपको वो सारी चीजें भी मिल जाती हैं और मेन कोर्स की भी चीजें मिल जाती है. The main USP about our food is the flavors, the taste. Thank you so much, sir. Now we formally start with the presentation. Yeah. I'll just share my. Over to you, sir. Well, as you can see that we started from Delhi itself. और हमारा एक बारबेक्यू एक छोटा सा हमने बारबेक्यू रेस्टोरेंट बनाया so that we can serve people. And हम इसमें इंडियन चाइनीज तंदूरी cuisines वगैरह क्या कहते हैं सर्व करते हैं. And the best part about our particular outlet is that we are totally focused on food. So that is the best part. See, what happens is आप जब एक आपका बिजनेस मॉड्यूल हर एक बंदे का एक बिजनेस मॉड्यूल है. हमारा बिजनेस मॉड्यूल जो है that is related to food only. So we don't diversify ourselves into something else, spending money on something which is, I mean, in my terms is not important. जो हमारा बिजनेस कहता है कि हमें करना चाहिए, सो हमारा टोटल फोकस होता है फूड के ऊपर. एंड देयर आर फ्यू डिशेस व्हिच आर quite popular with our brand, जो लोगों को बहुत पसंद है. उनमें से है जैसे टिक्का शराबिया का. That's one of our USB. I mean, that is the hottest selling thing what we serve in our outlets. Vegetarians के लिए है पनीर पापड़ी, which is totally different in sense of what we have done is we have coated cottage cheese with आपका पापड़ जो होता है, and we serve it with that. Our rolls tikka are very easy to just easy quick bite. हाथ में पकड़ा ले गए. You order something and you can go. You're on a work or you're something. You're busy in something. आपने फटाफट उसको munch कर लिया. And then obviously our main course. So the total focus about our food is North Indian food, which is quite important for, I personally feel, which is quite important for the North Indian people. उनके लिए खाना जो जायका बोलते हैं वो बहुत important होता है. तो हमारा focus उसी पे है. And now we have almost like 12 outlets all over North Delhi, and we are expanding our business. So that's the journey about Tikka Junction. So I've already told you about our cuisine, and you can see the pics. Now we serve different type of stuff. Paneer papri, as I told you. Our butter chicken is quite good. Then we give sharabiya the tikka, and we serve it in a different style. I mean, what we do is we serve it with the kulcha, and वो जो kulcha होता है, वो भी उसकी जो ग्रेवी होती है उसी के अंदर हमने कुक करा होता है. So it's very tender और टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है लोगों को. So there are a lot of things जो हमारे खाने के अंदर है which are very 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 delicious. I mean for us all the dishes if you say जो हमने सारी select की हैं वो we have tried different dishes. I mean अगर आज हम बोलते हैं we have 250 plus dishes in our menu, so we might have tried around 1,000 different dishes with different taste. और उनमें से हमने ये select करके जो हमारी best, what we serve the best one, वो हमने अपने मेन्यू में डाली है. And we keep on looking for something new. हम हर रोज एक नई चीज को ढूंढते रहते हैं. Because in our business, what I personally feel is आपको हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एंड यही जर्नी टिक्का जंक्शन की रही है, हम लोगों की रही है, और आगे भी हम इसी चीज में बिलीव करते हैं कि आप रोज सीखते हैं एंड सीखते ही आप आगे
अपने काम को और रिफाइन करते हैं. Now, as I told you, the टिक्का जंक्शन का हमारा सबसे बड़ा यूएसपी और जो सबसे बड़ी हमारी सोच है, वो खाना है. So, because of that, we have totally put our efforts. हमने जो सारा का सारा एफर्ट डाला है, वो अपने खाने के ऊपर डाला हुआ है. इसकी वजह से क्या है, हम पहला पॉइंट, हम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं, so that because we don't have to uh, कीप अ चेक ऑन आवर मनी कि हमने इसका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा देना है या हमने और चीज़ों में कहाँ पैसे लगाने हैं. हमारा बेसिक मोटिव है हमारा खाना. सो व्हाट वी डू इज हम स्पेंड करते हैं द बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वी बाय एंड देन वी सेल इट. नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि हमारे पास और कोई चीज़ों पे हम ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि जहां आपको पैसा लगाना पड़े, हमारा फोकस खाने के ऊपर है, तो हम एक अफोर्डेबल प्राइस में कस्टमर को एक प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देते हैं. एंड यस, ऑब्वियसली विद यूनिक टेस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And as far as uh, the outlets are concerned, if you talk about Delhi, so we have it in. I mean, we started with Kirtinagar, and then we have Panjabi Bagh, Gulabi Bagh, Rajouri Garden, Janakpuri, Rohini, Dwarka, and there are lot of places we have it. We have outside Delhi, we have it in Punjab, we have it in Ludhiana, and we are coming up in Jaipur. We are also planning to come. I mean, we are in talks with few people who are interested in opening our brand outside India also. And yes, as I told you, we have 12 stores in North India. We have more than 240, 250 plus dishes. Uh, yes, we are very proud of serving more than 1 lakh happy customers. And as far as the staff is concerned, we have around 250 plus experienced staff. So our motive is totally on food. हमारा सारा मोटिव जो हमारा फोकस है वो खाने के ऊपर है. सो उसके लिए हम दी बेस्ट गाइज हु कैन वर्क फॉर अस और उस मॉडल को किस तरीके से चलाना है. सी द बेस्ट पार्ट इज वी पुट आवर एफर्ट. और हम लोगों ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारी विजन यही थी, अच्छा खाना देना. और अच्छा खाना जब आप लोगों को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी उस तरीके से बढ़ता है. बिकॉज पीपल एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक नॉर्मल आदमी के लिए है एक अच्छा खाना, राइट? तो अच्छे खाने के लिए यू हैव योर फोकस ऑन द फूड और ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करता है. Yes, as far as the professional, we are looking for a franchisee partners. Uh, पहला हमारा जो most important जो हमारा focus रहता है, if somebody who is from the hospitality F&B industry who wants to become or wants to start his own business, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है जो हम देख रहे हैं. Secondly, मैंने आपको जो बोला, somebody who is interested in starting up in his own business and has a passion about food. जिनको खाना पसंद है और जो अपना काम करना चाहते हैं, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, right? Because the module itself is to start up with a small business and get into a bigger scale. As far as the business module is concerned, क्योंकि ये हमारा फोकस खाने के ऊपर है, एंड व्हाट वी डू इज वी सी द लोकेलिटी एंड द मार्केट वेयर वी वांट आवर आउटलेट्स टू गेट ओपन. तो उससे क्या है कि हमें जो सस्टेन करने का पीरियड है वो हमें अच्छा सफिशिएंट मिलता है. एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारे सारे आउटलेट्स दे वर्किंग इनटू अ वंडरफुल वे, दे आर ग्रोइंग अप डे बाय डे. तो वो सारी चीजें भी उसके साथ चलती हैं.
See, as I told you that we are serving Indian, Chinese, tandoori cuisines, and the menu is a lavish menu. And as far as we are concerned, I'll brief you out with a few things. Jaise Chirag hai, he is my childhood friend also, and हम दोनों ने rather हम तीन, चिराग, निखिल and me, हम लोगों का शुरू से ही खाने के बारे में फोकस था. And Chirag himself is very creative. तो he looks for the इनका जो मेन फोकस रहता है वो किचन के ऊपर रहता है कि किचन किस तरीके से क्या कहते हैं बननी चाहिए, सो दैट इन नियर फ्यूचर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, जब आप काम को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको फीड करेगा वो है किचन. सो ही इज इनटू दैट, ही इज इनटू डिजाइनिंग ऑफ द किचन, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ कैसे ये कैलकुलेट करते हैं. ही कीप्स अ ट्रैक की मेरी ये पोजीशन किचन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए जिससे मेरा जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो अच्छा निकले और टाइम से निकले. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. दीज आर माइनर थिंग्स जो लोग भूल जाते हैं. जो आउटलेट्स खोलते हैं, दे मेक एन आउटलेट जो बाहर से बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, जब आप काम करने की बात करते हैं तो काम में वहां प्रॉब्लम्स आती है जब वो फीड नहीं कर पाता लोगों को. सो फॉर अस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जो लेआउट, जो आपका स्ट्रक्चरल लेआउट होता है. एंड फॉर दैट आई थिंक चिराग इज द बेस्ट गाय, बिकॉज ही नोज कि किस तरीके से सामान निकलेगा, तो उसका लेआउट कैसा चाहिए, किचन का आउटपुट कैसा होना चाहिए. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Yes, we take care of the chefs. We are very very particular about the hygiene, क्योंकि देखिए आज की डेट में it is very very important. And I personally feel कि as an Indian market और as an Indian customer, हम लोग काफी grow कर चुके हैं in sense of we are very particular about hygiene. We are very particular about professionalism. लोग समझते हैं. आज से पहले लेट्स से 8-9 साल पहले इट वाज अ नॉर्मल थिंग जब लोगों को खाने का टेस्ट था लेकिन हाइजीन से लेना देना कुछ नहीं था. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाइजीन, and especially about this after this pandemic, people are more cautious about the hygiene stuff. And from day one we keep a track कि जो भी हमारा खाना या जो भी हमारा सिस्टम हम जो करते हैं from the opening time of the restaurant or the barbecue, हमारा उसको hygiene standards को we keep a track on it. It has to be on a level where there is no error. तो हमारा ये सिस्टम हमेशा रहता है कि हाइजीन को कैसे रखना है. एंड ऑब्वियसली खाना, जो मैं हर बार बोलता आया हूँ कि खाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द टेस्ट, द फ्लेवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा मेन फोकस उस पर भी रहता है. नाउ व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स वी हैव फॉर franchisee. Basically we are offering two formats. The first one is the QSR franchisee outlet. Uska basically hai that you don't have a dine-in place where you have a takeaway center or a delivery center or something like that. The kitchen would be there. जो kitchen है आपकी वो ही सारा supply करेगी. और ये basically किन लोगों के लिए है जो initially they want to start their business with a small amount and they want to earn, as well as पहला major rule, जिनको पैशन है खाने के लिए, खाने का पैशन, चाहे खिलाने का पैशन है, और जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कहते हैं QSR का फॉर्मेट है, where you have to spend little amount and you can own your own business. आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं एक छोटी अमाउंट से. The details are already mentioned. Chirag, you want to continue and tell about the other things? हम यही है जो ये QSR मॉडल का अभी आपने बताया, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये अबाउट 30 लाख रुपीस है, और इसमें जो हमारी फ्रेंचाइजी फीस है वो 15 लाख रुपीस है, और उसके अलावा जो बाकी का अमाउंट है वो बाकी जैसे सिविल वर्क होगा, इक्विपमेंट्स, कैमरास, पॉज सिस्टम,
ड्रेसेस, ये जो ऊपर का बाकी का जो है, बाकी के 15 लाख उसके हैं। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, ये मतलब 10% ऊपर नीचे हो सकता है। और इस पे जो हम, इसके लिए जो हमें एरिया चाहिए होता है वो 450 स्क्वायर फीट के अराउंड चाहिए होता है। उसमें हमारा खाली किचन, कैश काउंटर और पिकअप एरिया ही उसमें बन पाता है। और इसमें हमारा स्विगी जोमेटो से टाई अप्स होते हैं और हमारी सेल्फ डिलीवरी होती है। और उसके बाद जो फ्रेंचाइजी फीस के बाद जो हम इन्वेस्टर से लेते हैं, वो हम रॉयल्टी लेते हैं 4%। वो एक स्पेसिफिक सेल के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जब इन्वेस्टर को भी कुछ प्रॉफिट आना अर्न हो, या उसकी एट पार एक अमाउंट हम सेल का सेट करते हैं कि उसको एट पार सेल नहीं चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एट पार आने के लिए। उसके बाद ही हम रॉयल्टी स्टार्ट करते हैं सेल पे 4%। और वैसा ही जो हमारा, अगर डाइन इन फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो उसमें 15-20 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, जो कि जैसे फर्नीचर्स, कटलरी, क्रॉकरी और इंटीरियर्स पे जो इन्वेस्टमेंट ऐड होनी है। किचन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, स्विगी जोमेटो से टाई अप्स उसमें भी होते हैं, सेम वैसे ही होता है सब कुछ, बस डाइन इन का पार्ट उसमें ऐड हो जाता है, उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी ऐड हो जाती है। और उसमें थोड़ा सा हमें भी ध्यान ज्यादा देना होता है, तो उसकी तो फ्रेंचाइजी फीस में थोड़ा सा फर्क है, वो 15 लाख की जगह वो 17 लाख रुपीज है। और उसमें जो एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है वो अप्रोक्स 1200 स्क्वायर फीट तो मिनिमम एरिया चाहिए कि 50-60 की सिटिंग आ सके मिनिमम। बाकी तो जितना अगर आप हाई स्केल पे सिटिंग करना चाहते हैं, एरिया उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ मैम, नेक्स्ट। Thank you so much, Pranav ji and Chirag, for this presentation. I could see your passion on the food. I think ever since you started, you talked about the food and a lot of emphasis that you give on the entire food planning and also the structure of the outlet. And I would also congratulate you what you've achieved in the last few years. So, Pranav ji, before we go on to the questions, I will also request you to ask the questions in the Q&A box. And also, you may advise which cities are you keen from. I did see some of you asking and wanting to reach out to the brand. I would request you need to mention your city. And even if you come with prior experience, for example, Pranav ji mentioned, अगर आप food के experience से आते हैं और वो compliment कर सकता है, अच्छी बात है. अगर नहीं आते हैं, then I'm sure the company does provide training. But if you come with the required experience, this is always beneficial. So Pranav ji, before we start from the audience where I see some questions coming in, I would like to first of all अगर हम शुरू कर सकें, जैसे हमने investment की बात की, there's overall investment of 30 lakhs and this 30 lakhs includes the franchise fees as well, or the franchise fees is over and above? No, this includes the a certain part of franchise fee, and उसमें see that depends आप कौन से क्या कहते हैं प्रोसेस में जाना चाहते हैं. You want to go for the Q&A or you have to go for the different the sitting, the dining one. जो आपको अभी चिराग ने बताया, see for the Q&A we are looking for the total investment है, that is around 30 lakhs, approximately about 30 lakhs. Am I correct, चिराग? अप्रोक्स। हाँ जी. और इसमें जो फ्रेंचाइजी फी है, that would be somewhere about 15. Yes. So why? अब उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है. See, what we do is हम लोग हर चीज, it is not the matter of giving a franchisee and आप अपना emphasis या आपका work नहीं है. Franchisee for us is another outlet. It's our own baby. ये हम उसको उसी तरीके से देखते हैं कि ये हमारा अपना आउटलेट है. सी, अगर कोई आदमी हमारे ब्रांड में, कोई बंदा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो हमारे ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहता है, सो हमारा मोटिव ओनली विद द फ्रेंचाइजी फी नहीं है. व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू रन दैट बिजनेस इन अ प्रॉफिटेबल वे, सो दैट पहला पॉइंट, जिसने इन्वेस्ट किया हमारे ब्रांड में, ही इज अर्निंग समथिंग. सेकेंडली, वी आर ग्रोइंग विद इट. सी, आई एम नॉट सेइंग कि हम सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपना पैसा लगाया तो हम उनका पैसा उनको मिलेगा. फॉर अस, our brand is also increasing and we feel very proud कि जब हमारे add-ons होते हैं
आउटलेट्स और वो चलना शुरू होते हैं. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी से कि हमारे सारे आउटलेट्स अच्छे हैं एंड फोकस हमारा डे वन से रहता है. इट्स नॉट अबाउट ओनली द स्टाफ, it is with us also. As I told you that Chirag himself keep a very he keeps point of point कि किचन का कैसे लेआउट हो रहा है, हर चीज कैसे हो रही है. इट्स नॉट अबाउट गिविंग यू अ स्टाफ कि वो आके वहां पे देख रहे हैं कि कैसे काम होगा. एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर फ्रॉम आवर साइड एज वेल एज विद द स्टाफ. तो हम लोग उसमें खुद आके इन्वॉल्व होते हैं. ओपनिंग में, ट्रायल रन्स में, आपका पहले स्ट्रक्चर बनने में, लेआउट कैसे फाइनलाइज करना है, और उससे इम्पोर्टेंट लोकेशंस. हम लोकेशंस को भी, let's say if somebody is interested in opening an outlet at an XYZ place in Delhi, हम वहां पे लोकेलिटी देखते हैं whether that locality is feasible for our business. क्या वहां पे हमारा काम जो है, जिससे रिलेटेड हमारा काम है, वो चलता है. हम वो जगह को देख के उसको स्क्रूटनी करके इफ दैट प्लेस इज ओके वी गिव द थम्स अप. देन आगे आता है उसको किस तरीके से बनाना है. चिराग टेक केयर ऑफ इट कि उसका आउटलेट स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए विच इज compatible to our business module. Then comes the hiring of staff. Then comes the preparation and telling about the cuisine. फिर trial runs. And then जो आपका मेन लॉन्च टाइम होता है. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वी टेक अ फ्रेंचाइजी फी और हमने एक नाम दे दिया एंड देन एवरीथिंग इज बीन फिनिश्ड. द बेस्ट पार्ट इज वी कीप अ ट्रैक कि काम किस तरीके से चले. एज चिराग टोल्ड यू कि जो स्लाइड्स में भी बताया था कि हम जो रॉयल्टी लेते हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल जब आ जाती है तब हम रॉयल्टी लेना शुरू करते हैं. The reason for that is, पहला कि जिसने इन्वेस्ट किया है he start earning something, and secondly why do we keep a royalty? That we are eager enough. हम लोगों को भी जल्दी होती है कि वो काम जल्दी से जल्दी सेट होके जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में आए, क्योंकि जब वो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा we'll also start earning. So this is the basic procedure about it. जी, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आई वुड लाइक टू पिक अप, इफ यू कैन आल्सो maybe give a breakup of the entire investment. जो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, so our franchise fees is like I mentioned and you also reiterated, this is comparatively a higher franchise fees. So 50% जो आपका इन्वेस्टमेंट is towards franchise fees. 15 लाख आपका franchise fees है and the balance 15 lakhs is investment which goes in the capex. So इस 15 लाख का हमारा ब्रॉड ब्रेकअप क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट का, एक बात. एंड सेकंड, बिकॉज जो इंटीरियर्स है हमारा, हाउ इज इट टर्न की डन बाय यू, जैसे आपने बोला इट विल बी ऑल सुपरवाइज्ड, या ये फ्रेंचाइजी लोकली एग्जीक्यूट कराएंगे बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय यू. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकअप ऑफ द 15 lakhs of investment and the second is on the interiors, how is that executed? मैम जो इसमें फ्रेंचाइजी फीस का अमाउंट है जो 15 लाख रुपीस है, अगर उसका हम ब्रेकअप करें तो जैसे अगर हमारी कोई फ्रेंचाइजी डील कभी भी अगर हम डील जब होती है तो उसी टाइम पर हमारा जो हायरिंग ऑफ स्टाफ है वो स्टार्ट हो जाता है. तो हम 1 से 2 महीने तक हम स्टाफ को सारा ट्रेनिंग देते हैं अपने अंडर, अपने एग्जिस्टिंग आउटलेट्स पे, कि उनको वहां पर जाकर इतनी प्रॉब्लम ना आए कि कुछ नया, क्योंकि मेन जो इसका जो मेन है पार्ट है वो स्टाफ ही होता है, क्योंकि अगर स्टाफ ही बेटर नहीं होगा तो कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा. तो उनकी सैलरीज जो 1 महीने की 2 महीने की सैलरीज है वो हमारी साइड पर होती है. और जो फ्रेंचाइजी फीस में हमारी सारी कंसल्टेंसी हमारी होती है कि आउटलेट की डिजाइनिंग कैसे होगी, जो स्विगी जोमेटो से टाई-अप्स कराना, कैसे एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, क्या कुछ मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम हमेशा जैसे कोई अगर इस लाइन में नहीं है तो उसको कुछ आइडिया नहीं है कि इक्विपमेंट्स कहाँ से आने हैं, क्या चीज कैसे होनी है, ड्रेसेस कहाँ से आनी है, वेंडर्स कहाँ से रॉ मटेरियल आना है, तो वो सब कुछ सारी हेल्प हमारी होती है. तो फ्रेंचाइजी फीस कंपेरेटिवली बाकी ब्रांड से हमारी थोड़ी हायर साइड पे है, वो इसीलिए है कि हमारा एफर्ट नॉर्मल ब्रांड से ज्यादा है, इसीलिए फ्रेंचाइजी फीस हमारी थोड़ी ज्यादा है. और जो बाकी जो 15 लाख का जो वहां पर ब्रेकअप है वो उसमें कुछ अप्रॉक्स 7 to 8 लाख भी इसके तो इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स हैं और सारे जो रेंजेस आती हैं वो है, और पॉज सिस्टम और लैपटॉप है,
और अच्छा, अगर हम कुछ अप्रॉक्स 50,000 to 1 लाख रुपीस का अगर हम कुछ रेंटल, अगर जो जगह का जो भी फाइनल होता है आजकल उसका 2 महीने या 3 महीने की सिक्योरिटी जाती है, वो भी इसी में ही इंक्लूड होती है। ये सब कुछ अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, हो सकता है कि कुछ 10% 15% ऊपर नीचे हो सकता है। और बाकी जो जैसे कैमराज हैं, ड्रेसेस हैं, और सिविल वर्क है, कुछ टाइल्स वगैरह लगना है, प्लम्बिंग वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये सब कुछ करके अप्रॉक्स 15 लाख रुपीज ये इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फीस है। जो फ्रेंचाइजी फीस है वो कुछ भी लोकेशन और एरिया के हिसाब से थोड़ी बहुत नेगोशिएबल है, लेकिन वो उस टाइम पर मतलब लोकेशन के हिसाब से होगा वो। Okay, so if I have to just reiterate, so हम total 30 lakhs की investment की बात करें, 15 lakhs जो आप franchise की बात करें उसमें you will give the entire support till the time of launch, and this will also बिल्कुल। include the salaries of the people जो आपको पहले hire करनी पड़ता है, train करना पड़ता हाँ, है, which is at जब least a month and a half before you train these staffs on behalf of the बिल्कुल। franchisee. These salaries are paid by you, and the other हम्म, fee that you mentioned is a design fee. Typically companies एक design fee का अलग component charge करती है, but what because your fees is high, you're seeing जो आपने design fee भी रखा हुआ है, that is also included as a part of the franchise fees. And if we talk about the interiors, Rajesh, में interiors हमारा typically क्या हमारा investment रहता है, and equipment are sourced by the franchisee from these vendors, या ये सारा का सारा payment and procurement everything is done by you? नहीं, हमारी सिर्फ गाइडलाइंस रहेंगी। अगर फिर भी इन्वेस्टर को रिक्वायरमेंट है कि नहीं जी मेरे पास कुछ सोर्स नहीं है, आप ही बताइए, तो हाँ हमारी पूरी हेल्प रहेगी। हम वेंडर्स के नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उन्हें हमारे वेंडर्स से ही लेना है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। Okay. All right. दूसरा क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगी, दिस इज ऑन द फूड, यू नो, बिकॉज़ यू लेड लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द फूड। इसमें हमारा सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है, क्या सप्लाईज हैं जो लोकली प्रोक्योर होती हैं, इज देयर अ सेंट्रल किचन वेयर वी हैव सम प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स व्हिच आर सेंट टू द आउटलेट, ये कैसा हाउ द एंटायर सप्लाई चेन ऑफ प्रोडक्ट वर्क्स? नहीं, हम सिर्फ वेल ट्रेन्ड मतलब शेफ प्रोवाइड करते हैं और उनको पूरी नॉलेज होती है, वो सब कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना है और वो सब कुछ वहीं पर रेडी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वेस्टर को हमारे से ही कुछ रॉ मटेरियल या कुछ लेना पड़ेगा, वो सब कुछ आउटलेट पे ही रेडी होगा, सब कुछ, ऑल ग्रेवीज, ऑल मैरिनेशन, सब कुछ वहीं पर ही होगा। And as far as the raw materials are concerned, yes, we do have people जो vendors हैं हमारे, जैसे चिकन सप्लायर हो गया, वेजिटेबल सप्लायर हो गया, डेयरी सप्लायर हो गया, ऐसे हैं हमारे पास। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी एज वेल, कि अगर वो लोकेलिटी ज्यादा दूर पड़ती है वेयर अ नॉर्मल लेट्स से एक वेंडर वहां पे सप्लाई नहीं कर सकता, तो हम वहाँ के लोकल वेंडर्स को भी देखते हैं। सी अगेन, हमारा काम डे वन से स्टार्ट हो जाता है। लोकेलिटी देख के अगर वहां पे नॉर्मल वेंडर्स जो हमारे पैनल्स में वेंडर्स है वो वहां सप्लाई नहीं कर सकते, देन वी हैव टू सर्च फॉर द वेंडर। हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, हम देखते हैं वेदर दैट पर्सन वुड बी फिजिबल फॉर आवर बिजनेस और नॉट, वो हमें सप्लाई और वो क्वालिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। एंड इफ दैट इज फाइन कि वो हमारी क्वालिटी जो हम चाहते हैं वो मिले और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करता है, तो हम वहाँ के लोकल वेंडर्स को भी हायर कर लेते हैं। सो दैट इज नॉट, इट इज नॉट लाइक कि हमने कुछ पैनल्स पे रखे हुए हैं अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले वेंडर्स, आपने उन्हीं से लेना है। इट इज नॉट लाइक दैट। यस, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हमारे फिक्स्ड हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड से वी डोंट प्ले अराउंड। एज फार एज द वेंडर्स आर कंसर्न, या लेट्स से कि कोई जो फ्रेंचाइजी लेता है ही इज कीन कि सप्लायर मैं अपना लाना चाहता हूँ जी, जो रॉ मटेरियल दे। स्टैंडर्ड्स जो हमारे क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स के हैं, बी इट मसालास, बी इट यू नो डेयरी प्रोडक्ट्स, बी इट वेजिटेबल्स, बी इट एनीथिंग, वो अगर मैच करते हैं वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट। All right. The other question which I want to pick up is on the average projections. जैसे आपने बात की, आप royalty तब चार्ज करना शुरू करते हैं when the outlet comes to a certain optimum level of throughput. You know, एक sizable revenue करना शुरू कर देता है. Based on your experience of running these 12 outlets जो आप run कर रहे हैं, on an average एक outlet का क्या हम sales expect करते हैं, आता है, कितना time लगता है उस sales projections को reach करने में? And second, which I want to also touch upon is unit economics. You know, क्या sales का part हमारा rental के पास जाना चाहिए? What percentage goes for platforms like Swiggy and Zomato, because they also take a sizable percentage of commission on any supplies which they do. So इसका अगर एक broad economics आप help करें for the interest of our audience.
इसमें मैम जैसे हम टेक अवे आउटलेट के लिए हम जैसे रेंटल्स जो हमें सूट करते हैं वो अप्रॉक्स 40 लाख टू 70 लाख हम सोचते हैं कि हमें इतना रेंटल मिले तो अच्छा है। वैसे हमारे कई आउटलेट्स हैं, जैसे कोई प्रीमियम 40 लोकेशन होती है 40,000 40,000 40,000 पर मंथ टू 70,000। ये मतलब हम ये सोचते हैं कि ये रेंट होना चाहिए, लेकिन फिर हमारी कई लोकेशंस हैं जिनका रेंट अप्रॉक्स 1 लाख भी है उसका पर मंथ। लेकिन वहाँ वो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छी लोकेशन है तो फिर हमें उस रेंट पे भी जाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो अगर हमारा सपोज अगर हमारा 60,000 रुपीज पर मंथ अगर रेंट है, तो हमारी जो एट पर सेल आने के लिए हमें अप्रॉक्स 30,000 पर डे की सेल चाहिए, एवरेज सेल। हमें मंथली 8 to 9 लाख रुपीज सेल चाहिए एट पार आने के लिए। उसमें हमारी फूड कॉस्ट है और सैलरी पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, और ये सब कुछ करके हमें, और स्विगी जोमेटो की आजकल, हाँ जो आपने बोला अभी, स्विगी जोमेटो की जो टाइप्स हैं उन्हीं की ही कमीशन काफी ज्यादा है। हमारा जो स्विगी जोमेटो पे टाइप है वो अप्रॉक्स 18% प्लस टैक्सेस पर है। तो एक ये हमारे ब्रांड के साथ ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि आजकल जो नया स्विगी जोमेटो टाइप्स करते हैं वो 25-26% प्लस टैक्सेस पे करते हैं। तो हमारा जैसे एज अ ब्रांड अगर चल रहा है तो वो 18% प्लस टैक्स पे हमारा टाइप होता है स्विगी जोमेटो के साथ। तो टेक अवे आउटलेट पे यही प्लस पॉइंट है कि अगर हम अच्छी लोकेशन लेंगे तो हमारी सेल्फ डिलीवरी और सेल्फ टेक अवे भी अच्छा होता है, तो उससे थोड़ा वो एवरेज अच्छी निकल आती है। अगर हमारे जैसा एक क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट भी होता है, उसमें खाली स्विगी जोमेटो का ही पार्ट ज्यादा होता है, तो उसमें एट पार सेल आने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा सेल करनी पड़ती है क्योंकि कमीशन ज्यादा होती है। ओके। एंड इसमें अगर हम फूड कॉस्ट की बात करें, हाउ मच इज द फूड कॉस्ट? हाँ मैम, जो हम परचेज लेते हैं ना, खाली फूड कॉस्ट नहीं, फूड कॉस्ट प्लस पैकिंग मटेरियल प्लस जो सारे जो हम एज अ परचेज लेते हैं वो हम अप्रॉक्स 45% लेते हैं, 40 to 45%। ओके, सो आपका जिसमें 45% अगर आप तकरीबन। 30 to हाँ जी। 35% हमारा फूड कॉस्ट होता है, बाकी जैसे पैकिंग मटेरियल है और जो बाकी कॉस्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। सो व्हाट वी सेइंग इज आपका 35% इज द फूड कॉस्ट, तकरीबन 15% हमारा निकल जाता है टुवर्ड्स आवर रेंटल, अगर हम 9 लाख की खसे लेते हैं, 1 लाख जो आपने बताया। एंड देन व्हाट इज द रॉयल्टी दैट वी चार्ज, एंड ये सब सारे खर्चे निकालने के बाद व्हाट इज द एवरेज एब्सोल्यूट मार्जिन जो एक फ्रेंचाइजी के पास बचते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि 9 लाख रुपीज तो एट पार सेल है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सेल का अमाउंट बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ मार्जिन उस हिसाब से इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट और जैसे सैलरीज हैं, रेंटल्स हैं, वो तो सब फिक्स रहेगा, सिर्फ उसमें फूड कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज होगी, परसेंटेज ऑफ मार्जिन उस हिसाब से इंक्रीज होता रहता एंड द है। ये फूड कॉस्ट अप्रॉक्स, आल्सो डिक्रीजेस। जब आपकी हाँ सेल बढ़ती है तो आप क्वांटम में, क्या कहते हैं, हाँ क्वांटिटी में आप चीजें बनाते हैं। ठीक है, जब आप क्वांटिटी में चीजें बनाते हैं तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है, उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। सो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स इनटू द पॉकेट। कि जितना अगर कम सेल होगा तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग आपकी हाई आएगी, हर चीज हाई होगी। आपके फिक्स्ड, क्या कहते हैं, स्टाफ है। आप 9 लाख की सेल मारते हैं तब भी आपका वही स्टाफ रहता है। आप उसको 15 लाख की सेल पे लेके जाते हैं तब भी वही स्टाफ रहता है। देयर इज अ माइनर अप एंड डाउन कि आपको एक आधा और बंदा बढ़ाना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर सेल। एंड ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट, जो आपकी फूड कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज यू आर मेकिंग इन टू अ बल्क सिस्टम। जब आप खाना ज्यादा बनता है या आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपकी कॉस्टिंग कम आती है। Sure, very helpful. जी दूसरा क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगी, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स दिल्ली से भी कुछ लोकेशंस आ रही हैं, व्हिच इज ऑब्वियसली एनसीआर एंड मे बी फ्यू फ्रॉम साउथ। सो कौन सी हमारी प्रायोरिटी लोकेशंस होंगी इस टाइम पे एंटर करने के लिए? अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी हमारा साउथ दिल्ली में हमारा एक आउटलेट है, जैसे मालवीय नगर में है। तो हम साउथ दिल्ली हो गई, ये लखनऊ से हमारे पास कई क्वेरीज आती हैं। और लेकिन वही, मतलब हमें लोकेशंस का, अब देखो मेरे को लखनऊ के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताऊं। लेकिन हाँ, हमें लोकेशंस ऐसी चाहिए जिसके आसपास रेजिडेंशियल अच्छा हो, फुटफॉल अच्छा हो, और करंटली मार्केट हो। बाकी नॉर्थ इंडियन फूड और हमारा टेस्ट है, बाकी वो काम हमारा है फिर इसको प्रमोट करना। हमारा ये गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, ये सारी अच्छी लोकेशंस हैं।
तो दिल्ली एनसीआर आपका ओपन है, बट नॉट ओवरऑल इंक्लूडिंग पंजाब, क्योंकि आप आउटलेट्स रन करते हैं. इवन मेरठ आप कह रहे हैं वो भी ओपन है, लखनऊ ऑल्सो. एंड विल यू आल्सो गिव एनी असिस्टेंस लोकेशन के ऊपर, अगर कोई ऐसी लोकेशंस आपको लगता है देंगी फ्रेंचाइज पार्टनर को? Sorry, could you repeat it again? लोकेशन असिस्टेंस. The location आई assistance थिंक office. लोकेशन असिस्टेंस, कोई अगर साइन अप करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, तो उसमें से आपकी टीम उनको असिस्ट करेंगी टू हेल्प देम फाइंड द राइट लोकेशंस. जी हाँ, बिल्कुल। जैसे पहले भी चिराग ने बोला दैट फॉर अस लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. सो लेट्स से इफ समबडी टेक्स अ पर्टिकुलर एरिया, या आपने जैसे मेरठ की ही बात करी, आपने बोला कि मेरठ से कुछ लोग इंटरेस्टेड है, वो मेरठ में हमें एक पर्टिकुलर एरिया बताते हैं कि वी आर प्लानिंग टू ओपन इट, लेट्स से शास्त्री नगर वहाँ पे है, वहाँ खोलना चाहते हैं, या मॉडल टाउन या सिविल लाइंस उस एरिया में वहाँ पे खोलना चाहते हैं. we'll search, we'll go and visit that places. हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए जाके देखा कि कैसी जगह है क्या है. we'll survey that place, और अगर हमें लगता है वो जगह हमारे बिजनेस मॉडल के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है तो ठीक है, और अगर हमारे पास एक बेटर ऑप्शन होगी तो we'll also suggest that place कि आप मेरठ में आप इस जगह नहीं, आप इस जगह खोलिए, यहाँ पे बिजनेस अच्छा हो सकता है. आप देखिए कि आपको वहाँ पे इजीली क्या कहते हैं शॉप मिलती है, प्लेस मिलती है, एंड वंस उनको वो चीज मिलती है, वील विजिट अगेन एंड सी कि वो जो जगह जो उन्होंने शॉप ली है, द साइज, द यू नो अगेन द लोकेलिटी, वो हमारे बिजनेस के साथ सूट करती है. विल गो अहेड. असिस्टेंस ऑब्वियसली वो तो सी हमारा बेसिक मोटिव, दो अगर बोला जाए तो ये बिजनेस की तरह है, बट वी जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे लिए वो बिजनेस नहीं था, इट पैशन. तो आज भी हम यही कहते हैं कि चाहे हमारे साथ कोई फ्रेंचाइजी में आएगा या कुछ भी आएगा, he'll be a part of टिक्का जंक्शन. तो एक फैमिली की तरह है, एंड अ वेरी क्लोज नेट फैमिली, वेयर अगर 12 के 13 आउटलेट होते हैं तो हम भी उतने खुश होंगे, और हमारे जो फ्रेंचाइजी वाला है ही बी वेरी प्राउड कि नहीं हमारे ब्रांड के 13 आउटलेट हैं या 14 आउटलेट हैं या इतने आउटलेट हैं. सो फॉर दैट हमारा शुरू से जो बिजनेस, अगर आप प्रोफेशनली हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, लेकिन हमारी कोर लैंग्वेज में अगर इसको बोलेंगे, टिक्का जंक्शन भी हमारी सोच एज अ फैमिली है. तो असिस्टेंस इररिस्पेक्टिव कि हम जो चीजें बोल रहे हैं कि हमारी यहाँ पे असिस्टेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, यहाँ ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस आल्सो. लेट्स से कि हमने बोला एक पर्टिकुलर सेल के बाद विल टेक अ रॉयल्टी. नाउ वी सी कि वो पर्टिकुलर सेल तो हमने मैच कर ली, लेकिन आगे उसको ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो वी आर फ्लेक्सिबल इनफ. हमारे लिए एक आउटलेट प्रॉफिटेबिलिटी में रन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज आवर प्रायोरिटी कि कोई भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी में कोई आउटलेट खोलता है, दैट आउटलेट हैज टू रन, क्योंकि जब वो ज्यादा रन करेगा Definitely. तो ऑब्वियसली हमारा ब्रांड भी बनेगा और हम भी अर्न करेंगे. Definitely. जी, last question which I want to pick up is on the marketing. कोई भी अगर नया launch आता है या अभी करंट marketing कैसे रहती है? What kind of marketing support is given by the company for any launch? And especially Delhi में आप people know you, people have experienced your product and food. But even outside Delhi, is there a different strategy at the time of launch, and how is a partner supported? मैम इसमें जैसे न्यूज़पेपर में फ्लायर्स वगैरह होते हैं, एड्स बैनर्स वगैरह होते हैं, और बल्क मैसेजेस होते हैं. फेसबुक पेज है हमारा, उस पे हम प्रमोशंस करते हैं कि ये न्यू आउटलेट्स हमारा ये आया है. अब जैसे अभी 3 दिन पहले ही हमारा एक नया आउटलेट कीर्ति नगर में डाइन इन का आया है, तो उसके लिए बल्क मैसेजेस वगैरह हो रहे हैं. अभी लास्ट मंथ हमारा एक नया आउटलेट मॉडल टाउन पार्ट 3 में ओपन हुआ है. ये लॉकडाउन में एक हमने आउटलेट अभी गाजियाबाद में ओपन करा है, शास्त्री नगर, चिरंजीव विहार गाजियाबाद में. तो उसकी होर्डिंग्स लगी हुई हैं गाजियाबाद मेन पार्ट्स पे. तो यही सब है, होर्डिंग्स हैं, फ्लायर्स हैं, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़पेपर एड्स हैं, बल्क मैसेजेस हैं, यही सब है एडवर्टाइजमेंट का पार्ट्स. एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. ऐसा नहीं है कि आउटलेट खुलने के बाद ही क्या कहते हैं हम इसकी प्रमोशन करना शुरू करते हैं. लेट्स से आउटलेट को खुलने में महीना 15 दिन है,
हमारा सब कुछ Launch. हाँ लॉन्च होने में, तो हम उससे पहले ही मार्केट के अंदर बाय फेसबुक, जैसे इन्होंने बोला, बाय फ्लायर्स, बाय होर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, हम वो स्टार्ट कर देते हैं सो दैट पीपल गेट अवेयर कि हाँ टिक्का जंक्शन यहाँ पे भी खुल रहा है. So for us, a launch doesn't mean कि हमारे घर वाले या फ्रेंड्स या ये लोग आके आपके फर्स्ट डे आपका काम स्टार्ट कराते हैं. For us, our friends, our family is the customer. तो हमारा मोटिव यही रहता है कि पहले दिन रादर देन हमारी फैमिली जो इमीडिएट फैमिलीज या रिलेटिव्स हैं वो आके आपका काम ओपन कराने से बढ़िया हमारा कस्टमर आके खाना खाए एंड ही पेज मनी. हमारा भी एक Word of mouth आउटलेट जाता है, anything aspect for any business. So I will also take some 2-3 questions which I have just seen they have come up. क्योंकि अभी हम नॉर्थ की बात करते हैं, we have Syed Shah from Bombay. He's asking if there is also possibility to consider maybe a master franchise rights for cities outside North India, and perhaps I'm assuming he's from Bombay. He's asking Bombay में अगर master franchise opportunity available होगी कि नहीं होगी. मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन भैया उसके लिए हम एक मीटिंग के बाद ही कि क्या एरिया है, तो वहां पर एक बार विजिट करने के बाद कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया, कितने आउटलेट्स उसके अंडर आएंगे, ये सब कुछ कंसीडर करके हम हाँ मतलब ये है कि हम मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए जा सकते हैं. हाँ, we are flexible enough, but we have to decide कि किस terms condition में that can be mutually taken care of. Again, I will add on to it. Master franchisee, while I think city के लिए भी available हो सकता है, क्योंकि कुछ cities जैसे अगर हम बैंगलोर समझे या बॉम्बे समझे, these are very very large cities, and maybe we need to understand the capability of the partner, क्या उनकी current bandwidth है, कितने outlets उनकी locations में आ सकते हैं, because a master franchisee is also required not only to own outlet, but जितने भी outlets उनके नीचे आएंगे, उनका support structure, trading structure, supply, everything becomes a part and parcel of the obligation of a area franchisee for that matter. And हो सकता है कि अगर हमें लगे कोई partner potential है, maybe bigger territory in Bombay can be given, but maybe territory in Bombay, ideally one can have about 3 odd partners अगर sizable business कोई देखना चाहते हैं, तो cluster में हम divide कर सकते हैं team, and this would require maybe a one-on-one discussion, Mr. Shah, which we can do maybe after the webinar gets over, which we'll request Mr. Pranav and Chirag ji to do and fix up a date with us, and we can bring you on a call. And एक और क्वेश्चन जो मैं लूंगी प्रणव जी, which I'm again seeing is जो हमने रॉयल्टी और उसकी बात की थी, so if I have to maybe add to that, आपने बताया रॉयल्टी तब लेंगे जब एक मिनिमम हमें लगता है कि रेवेन्यू या सेल्स एक आउटलेट कर सकता है, तो इसका टाइमलाइन क्या होगा? दिस इज व्हाट मिस्टर अमित मुखर्जी वांट्स टू नो. सो तकरीबन क्या टाइम लगता है उसको मिनिमम सेल अचीव करने के लिए? एंड दिस नॉट अ मिनिमम अमाउंट, ये अमाउंट वेरी कर सकता है लोकेशन टू लोकेशन. लोकेशन का पोटेंशियल ज्यादा है तो शायद वो ज्यादा रेवेन्यू करे, किसी का पोटेंशियल कंपैरेटिवली इतना बड़ा नहीं होगा. सो इट विल स्टिल टेक टाइम, एंड मे बी द रेवेन्यू कैन नॉट बी वेरी, एंड दिस कैन बी सब्जेक्टिव. यहाँ पे एक डेफिनेट रेवेन्यू नहीं कि 1 लाख की सेल के ऊपर हम चार्ज करेंगे. आई थिंक दिस कैन बी डिस्कस्ड एट द टाइम व्हेन द लोकेशन इज बीइंग फाइनलाइज्ड. बट तकरीबन क्या टाइम लगता है फॉर सम एनी ऑफ दीज लोकेशंस टू कम टू अ मिनिमम जेस्टेशन पीरियड? अगर वो पास करना चाहते हैं तो क्या टाइम के बाद वो ऑप्टिमम लेवल पे आना शुरू कर सकते हैं? हमारी कई लोकेशंस हैं जो फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिटेबल हैं, और वही मैंने आपको बताया वो लोकेशन पे डिपेंड करता है. कोई मेन मार्केट है तो वो हो सकता है कि फर्स्ट मंथ से ही, और जब भी मतलब चाहे उसको फर्स्ट मंथ लगे या 3 मंथ्स लगे या 6 मंथ्स लगे, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है नॉर्मली. लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जब तक वो उस सेल पर नहीं पहुंचेंगे हम उनसे रॉयल्टी नहीं लेंगे. तो मतलब वो वही है, हमारी भी कोशिश यही होती है कि फर्स्ट मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ्स तक वो उस सेल तक पहुंच जाए. Sure. Very helpful. Pranav ji and Chirag ji, before we close, I will also request any message that you have for the audience who's listening to you today. और दूसरा, क्योंकि मैं बहुत सारी इंक्वायरीज देख रही हूँ where people want to get in touch with you directly for a call, तो हम नेक्स्ट maybe we can take, आज मंडे है तो हम maybe 4 दिन का एक टाइम लेके जहाँ पे हम सारी प्रोफाइल्स फिल्टर कर सकें, एंड हमारी टीम्स आपके पास लेके आएंगी प्रोफाइल्स. And I will also request people जो दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, because outlets आप रन करते हैं, and seeing is believing. तो जितने भी लोग अगर आउटलेट पे आ सकते हैं, हमारी टीम वो भी हेल्प करेगी. You can come, experience the product, experience the food, outlet आप visit, all that would be facilitated by teams of Franchise India.
So we have put our hotline number in our chat box. आपको इस number पे reach out करना होगा, and our teams will fix up time in the coming week. प्रणव जी, आप बता सकते हैं कौन सा date आपके calendar के हिसाब से आपको viable लगता है, where we can bring our filtered prospects to you. मैम वी आर कंफर्टेबल विद एवरीथिंग. आप जितने टाइम में फिल्टर करके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सो वी कैन वर्क ऑन दैट. वी आर क्वाइट. अगर हम 13th रखें, आज मंडे है, by the end of the week अगर हम 13th रखें, 13th ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम मैम. तो हम नेक्स्ट 9, 10, 11, 12 मतलब 4 दिन है, 4 दिन में we'll qualify all the investors and reach out to you. And before we close again, प्रणव जी, चिराग, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से ऑडियंस जो आपको सुन रहा है फेसबुक. एक चीज मेरे से मिस हो गई. हमारी एक फ्रेंचाइजी ब्रैम्पटन कनाडा में भी ओपन हो रही है. वो कुछ लॉकडाउन की वजह से अभी तक नहीं ओपन हो चुकी, नहीं तो उस मतलब 5-6 मंथ्स पहले ही वो ओपन हो चुकी होती. तो वो कुछ वहां पर लॉकडाउन कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इस वजह से अभी ओपन नहीं हुई है. वो अंडर प्रोसेस है, तो वो विद इन 5-6 मंथ्स वो भी वहां पर ओपन हो रही है ब्रैम्पटन कनाडा में. Which you talking about Toronto or No, we are talking about Brampton. ब्रैम्पटन, I missed. ब्रैम्पटन. Okay. Hmm. Or okay. So basically Brampton have is now mini international, Punjab. तो वहाँ पे पूरा पंजाबी community है. So it is Right. quite near to आपका Toronto, the business hub. तो वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं प्रोजेक्ट आ रहा है. It was supposed to launch पहले, लेकिन because of the COVID वो डिले हो गया, because वहाँ पे काम करने के लिए परमिशंस नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से. But hopefully now everything is getting sorted out. तो वो जल्दी से जल्दी खुलेगा. Congratulations to you, Pranav ji and Chirag ji. And जब हम when we can go to Canada, so India also is not that far. We are looking at friends just to recreate. हम master franchisees की भी inquiries भी हम solicit कर रहे हैं. Anything which is outside North India. North India के अंदर भी ऐसी locations जहाँ पे ऐसी markets हैं जो currently underserved हैं, वो भी discuss की जा सकती हैं. Outside North would be a discussion which needs to understand the capabilities and obligations at both the ends. And we would request आप इस hotline पे reach out कीजिए. हम 4 दिन लेंगे starting from today till Friday, and we'll fix up maybe half an hour slot with each one of you, with Mr. Chirag and Mr. Pranav, and anyone who also wants to visit the outlet. अगर आप उस दिन outlet भी visit करना चाहते हैं और any other date जो आपको लगता है convenient है आपके लिए, आप visit कर सकते हैं. Let us know, because I see some inquiries outside Delhi. For example, Meerut, if they want to visit the outlet, you're more than welcome. We'll fix up your call meeting with the teams. So thank you so much, Pranav ji and Chirag ji, for coming in today. We wish you all the best and congratulations to what you've achieved, and may you achieve more success in this coming year. I think food market is looking very, very promising. I remember when we went into lockdown, the entire food business seems to have been halted, and rather I would say this was one category which saw the very first wave of increased number of inquiries. एंड प्री कोविड पीरियड भी बहुत इंक्वायरीज फूड की आती थी, बट लास्ट 6 महीने हमने देखा दीज इंक्वायरीज हैव अगेन स्टार्टेड टू इंक्रीज. सो वी आर सीइंग अ गुड upsurge and a good number of inquiries coming in, and I'm sure this year would be great for overall food industry and concepts which are there to stay. A lot of people have gone out of the business, but ये वो businesses थे जो sustain नहीं कर पाए थे, systems processes उनके synchronize नहीं थे, sustainable नहीं थे, but credible and sustainable companies like yourself have gone through these times, and it makes your systems even more robust, passing through difficult times like these. So wish you all the best. I want to add one more thing, ma'am. जैसे आपने बोला पेंडेमिक के बारे में कि उसमें हमारे बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, एंड वी आल्सो रियलाइज्ड इट, बिकॉज जब ये पेंडेमिक आया, इट वाज समथिंग जो हर पूरे वर्ल्ड के लिए इट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग, वेरी न्यू. तो हमने क्या रियलाइज किया बिजनेस मॉडल के अंदर, द बेस्ट पार्ट वाज आवर बिजनेस मॉडल वाज QSR, जो आपको डिलीवरीज देता है. गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया था या जो शटडाउन किए थे, वो सिटिंग एरियाज किए थे, नॉट द QSRs. वी वर द फ्रंट लाइनर्स. We were given permission to deliver food because that's the necessity of life. So first, the plus point, and I feel very proud that we serve people during this hard times. Secondly, as far as the business is concerned, तो यही हमारा एक जो business module है, ये ऐसा module था, apart from being a chemist or having a grocery shop or something like that, जिनका day one काम बंद नहीं हुआ. So if you talk about the business,
एंड जब से ये पेंडेमिक का हुआ, सो यू हैव टू कीप, जो आज तक कभी सोचा नहीं था, बट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, कि कल को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है, बिकॉज इट इज सर्विंग पीपल, डिलीवरिंग फूड, सो वी कम इन टू द फ्रंट लाइनर्स, तो हमारे काम को little bit of effect, but it is not like being shut down. Absolutely. I kind of second that. And I think seeing the response today, I'm hopeful that we should be able to get some good interest from our audience who has come in today. So we look forward to getting our filtered candidates on 13th. And I will also request we have Punjab mein outlets hain. You can reach out on our number, and teams will set the teams of PICX Junction. Thank you so much once again. Over to you, Mitna, for your final closing remarks. Sure. So thank you so much, Puri sir. Thank you so much, Chirag, for joining in today and all the efforts Chirag has specially put in for this particular webinar. Yes, Our yes. best wishes for you for your international as well as national openings. We would like to thank Sonia ma'am for sharing her insights and details about the industry as well as about the brand. Dear participants, dear friends who have joined us today, please do reach out to us at our business hotline number, which is 97176 83838. We seriously want you to share your suggestions, feedback, because that will help us in improving our process and will serve you in best of the manner. You can also connect with us at different social handles, information on your screen. We are also available at the Facebook page of, we have a Facebook page where you can go and see all the previously done webinars, different submit. The site is Franchisee India Brands Limited. That's the site. You can also connect and join Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs. Information on your screen. And tomorrow, under 238 edition of this digital webinar series, we are again bringing a great brand which comes from F&B category, Misalwala. That's the brand we are bringing from directly from Pune. They are already operational with 7 outlets and they want to expand with each one of you. So please do registration today at the same business hotline number so that you get a confirmation mail from our side and you can join tomorrow 12 p.m. Thank you once again for joining in today. Have a great day ahead. Stay safe, stay happy and eat healthy. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you, everyone. you, Thank you. everyone. Thank you Thank so you. much.